Hello, good morning, students. This is Shankar Sharma, your SP professor, and today we're going to discuss about the syllabus of SP for the whole year. In SP, we have 13 chapters. So, first, we discuss the syllabus today, that which chapters, which is important, and how much marks they carry. First, we have sources of corporate finance. And in that, we have to understand the concept of corporate finance and its importance, meaning of capital, understand the sources of owned and borrowed capital, compare different sources of finance. It means how the finance is around and how the company form. Along with that, all the procedures. Second lesson, we have the provisions about the procedures, that how the shares are issued in the market, along with debentures, and somehow the acceptance of public deposits. Well, public deposit itself is in one lesson, which is lesson number 5. We'll discuss in that. And then we have a third chapter, that's a develop communication skill related to members, debenture holders, and deposit holders. In that, we have some letters which is written by a company secretary, that how the correspondence is being done in the corporate world. Somehow the letters are being coming in exams for more than 20 marks. It's a major part for passing the exam. Actually, it is very scoring. Then we have a depository system. It makes understand that how the online process works in the corporate world. And then we have a payment of interest and dividend. Obviously, everybody knows that dividend comes when the shares are being issued at the end of the financial year, and it is distributed out of the profit. And there's some one interim and final dividend we'll discuss in the lesson. Then we'll know about the financial market. In financial market, we have a stock exchange, BSE, NSE, and about SEBI, which is one of the regulation authority of India who control the share market. So totally we have around 12 chapters, which is including every each and aspect of the corporate world. Okay, so today we're going to start the introduction to corporate finance. Corporate world. Corporate means is totally depend upon the shares which has been issued by the company to raise the capital. As everybody knows, without capital, it is not possible to survive in the market. बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के मार्केट में सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. अब कॉरपोरेट कंपनियों को बहुत बड़ा फाइनेंस चाहिए होता है. अब इतना बड़ा फाइनेंस बैंक तो देगी नहीं. बैंक अगर देगी तो बैंक बहुत बड़ी मॉर्गेज सिक्योरिटी मांगती है. अब इतनी बड़ी मॉर्गेज सिक्योरिटी तो होती नहीं किसी के पास. तो ये कंसेप्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिसे हमसे सीखने को मिला है. पहले हम इसे पढ़ते थे कंपनीज एक्ट 1956 जब बना था, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया था कि बिना बैंक की मदद के हम अपनी कंपनी का पूरा फाइनेंस तैयार कर सकते हैं, शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू. एंड देन 2013 कंपनीज एक्ट में बदलाव आए, नए अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस हुए, और आप बहुत ही लकी हो कि इस साल आपको पढ़ने को मिल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर आपको अपडेटेड पढ़ाई करने को मिल रही है. वैसे भी आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो कोर्सेज आप फ्यूचर में करोगे उन कोर्सेज के लिए करंट अपडेटेड एक्ट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है. सो अब तक जो कुछ था वो आउटडेटेड था, अब से अपडेटेड हम पढ़ेंगे. हाँ, कुछ चीज़ें पुराने एक्ट से हमने इस बार भी कंटिन्यू की हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो सिखाती है वो कभी बदलती नहीं है. बट 2013 का नया एक्ट जो हम सीखेंगे ये हमें बहुत ही बेनिफिटेड देगा. जो आप आने वाले समय में पूरी जो डिग्री करोगे, उन हर डिग्री में जितनी भी आप क्लासेस में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको एसपी का यूज़ आएगा.
Okay, so let's start the first chapter. Introduction to corporate finance. In that, we have a meaning, importance, and we have two terms, that is fixed capital and working capital. Okay, we'll come one by one. First of all, we understand the meaning. Wait. Yeah. Introduction. The term finance is related to money and money management. It's totally been related with the money and money management. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it's able to generate the use funds. We can say सब कुछ फंड्स पे डिपेंड करता है. अगर फंड्स बराबर है तो बड़े से बड़ी कंपनी टिक जाती है. अब बहुत से एग्जांपल आप जानते ही हो, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो. इनके पास फाइनेंस है तो आज ये कंपनी मार्केट में बहुत आगे है. अगर इनके पास फाइनेंस नहीं होता तो शायद ये इतना आगे बढ़ भी नहीं पाती. सो इन्होंने भी इसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़े, बिकॉज ये सब एक कॉर्पोरेट कंपनी है. ये सिर्फ बैंक के भरोसे पे नहीं है. इनके पास शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारे टर्म्स मौजूद हैं. कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस by corporation. It deals with the financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decision. Basically कैपिटल स्ट्रक्चर हम किसको कह सकते हैं कि पैसे को किस तरीके से हम एलोकेट करते हैं, कि कहाँ से ये आएगा, किससे कितना लेना है और किससे कितना लेने में फ़ायदा है. क्योंकि हम पूरा अमाउंट किसी भी एक पर्सन से नहीं ले सकते, क्योंकि एक पर्सन से पूरा अमाउंट लेना पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर हुआ भी तो वो खतरा हो सकता है. इसीलिए समझदारी ये कहती है, कंपनीज एक्ट ये सिखाता है कि अगर फंड्स आप बोरोड करते हो तो उसे बहुत जगह से अलग अलग तरीके से आप अराइज करो. जैसे कि शेयर्स इशू कर दिए. आप सबको पता होगा दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. मार्केट की सबसे पहली पसंद होती है इक्विटी शेयर्स, देन उसके बाद आता है प्रेफरेंस. इसके अलावा बॉन्ड्स के होते हैं 8 टाइप्स. अलॉन्ग विद दैट डिबेंचर्स के भी होते हैं 8 टाइप्स. एंड लास्टली एक ऑप्शन बचता है डिपॉजिट का. देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये डिसीजन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब क्या होता है कि अगर हमने बाकी सब काम कर दिए और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, बराबर है. तो इसके लिए बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजर्स, बड़े बड़े MBA को कंपनी हायर करके रखती है. आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ. अब डेफिनेशन में तो बहुत सी डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे. अब इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है हेनरी हॉलैंड की. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. यस, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्वायर करना. एंड प्राइमरीली डील्स मतलब सबसे पहले कैपिटल एक्वायर करो बिजनेस कॉर्पोरेशन बनाने के लिए. द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट. ये एक एक टर्म्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल. इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग. फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एंश्योर दैट. अब एंश्योर वी कैन से दैट, एंश्योर का मतलब हर कंपनी में जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है उस तरीके से CS को भी हायर किया जाता है. एक फाइनेंस मैनेजर होता है, खासकर ये MBA वगैरह करके आते हैं, इन्हें ये कंपनी हायर करती है. इनका काम यही होता है कि फंड्स को कहाँ कैसे एलोकेट करना है. इनका डिसीजन इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो द फर्म एज एन एडुकेट फाइनेंस, उनको ये बताना पड़ता है कि हमारे पास फर्म के पास कितना फाइनेंस है. दे आर यूजिंग द राइट सोर्सेज विद द मिनिमम कॉस्ट. खर्चा कम होना चाहिए. मैंने आपसे भी कहा था कि एक ही पर्सन से पूरे पैसे तो मांग नहीं सकते, तो उसी से मांगो जो हमें कम से कम कॉस्ट में दे. मैंने आपसे ये भी कहा था सबसे फेवरेट जो कंसेप्ट है मार्केट का वो है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स जो होता है उसी को लेके मार्केट आज की तारीख में रन होता है.
हालांकि ऑप्शन दूसरे भी है, बट ये सेकेंडरी ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद जो यूटिलाइज किया गया फंड्स, उसको कैसे इफेक्टिवली ये अपने पास रखते हैं और कैसे मैक्सिमम रिटर्न्स अपने पास जनरेट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है ये सबको ज़रूरी है। द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सबसे पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहले चलो फाइनेंशियल डिसीजन को देखते हैं क्या कहता है। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। कैपिटल मार्केट जो आज की इकोनॉमी को संभालता है, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स की बातें हम करते हैं। द फर्म हैज़ अ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। द फर्म कैन चूज whether it wants to raise equity capital or debt capital. Equity capital that is equity shares जैसे मैंने कहा, debt capital that is कर्जा, उधार, जो कि हो सकता है हमारा बॉन्ड, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो हमेशा पहला प्रेफरेंस इक्विटी को मिलता है, बाद में डेब्ट कैपिटल। इक्विटी के लिए हम क्या देंगे, डिविडेंड, और पर डेब्ट कैपिटल हमसे क्या चार्ज करवाएगा, इंटरेस्ट। आपको बता देता हूँ मैं, डिविडेंड का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर शेयर मार्केट में कंपनी का प्राइस, कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, तो जिस पर्सन ने शेयर खरीदा है उसको बहुत ही बेनिफिट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बिकॉज कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो वो अच्छा डिविडेंड देगी, और वो डिविडेंड जो होता है वो नॉट फिक्स्ड होता है। बट डेब्ट कैपिटल के केस में जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। अब इसमें कंपनी के लिए एक नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान ये है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसे तो फिर भी कुछ ना कुछ करके आपको पे करना है, बट अगर कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो भी आपको उतना ही मिलेगा। डिविडेंड के केस में भी वही दोनों बात है, मतलब हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो साइड है। The finance manager ensures that the firm is well capitalized, that they have a right amount of capital, and the firm has the right combination of debt and equity. वही फर्म आगे बढ़ती है, कामयाब होती है, जिसके पास इक्विटी और डेब्ट कैपिटल का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट हो। आगे देखते हैं। कैपिटल मार्केट को हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है। जैसे कि इक्विटी लॉन्ग टर्म है, इक्विटी की जो एज होती है वो है लाइफ टाइम। डिबेंचर की एज होती है 20 ईयर्स। बॉन्ड्स एज पर दी एग्रीमेंट, डिबेंचर को भी हम बोल सकते हैं एज पर दी एग्रीमेंट, प्रेफरेंस की एज होती है 20 ईयर्स। नाउ सेकेंड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस अ बिजनेस हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर सो दैट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। अब चलो पैसे तो ओवराइज कर लिए, अब बड़ा डिसीजन ये होता है कि किस तरीके से हम उस पैसे को यूज़ करें और मैक्सिमम रिटर्न्स दें ओनर्स के लिए। अब ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। जिस पर्सन ने शेयर खरीदे वो बन जाता है शेयर होल्डर, ओनर और मेंबर। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय द यूज ऑफ फंड्स इन सच ए वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार फर्म ने शुरू कर दिया अपना काम, तो हमें ये देखना है कि जितना पैसा हमने मार्केट से लिया था उधार, उस पैसे को हमने यूज़ करके अपना प्रॉफिट भी निकाला, साथ साथ में रिटर्न्स के लिए तैयारी भी कर दी। सो फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज एन इन्वेस्टिंग डिसीजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए कैपिटल बजटिंग। हम खुद कहते हैं ना, बजट बना के चलो, बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने खुद के पैसों का बजट ना बनाएं तो हम खुद भी लॉस में आ सकते हैं। इसी के लिए जब एक सिंगल इंडिविजुअल अपने घर को चलाने के लिए भी बजटिंग जैसे कंसेप्ट को समझता है, तो फिर तो ये तो कॉर्पोरेट कंपनी है, इसे तो बिल्कुल समझना होगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मीनिंग। Hope you guys understand this concept and stay tuned for the next topic. I'll upload soon the video and you can understand it. If you have any questions regarding this, you can provide the feedback on the website of the classes. Okay, so I'll come to know any kind of information, I'll attend it.